एंड इफ पीपल डोंट बाय इट तो ये बन जाएगा डेड स्टॉक, एंड अ डेड स्टॉक इज जस्ट द वर्स्ट थिंग फॉर एनी ब्रांड आउट देयर। आपको एडिशनल जो ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं ना फोटोशॉप के लिए, वो लेने की नीड भी नहीं है। हाँ, बढ़िया लैपटॉप तो शायद इन्फिनिक्स ने दोबारा लॉन्च ही नहीं करा। They marketed it as the MacBook killer. Because in Delhi, everything can be repaired. तुम कहीं से भी कुछ भी करा सकते हो। I mean, you can contact him for that. मेरा तो एकदम उल्टा थॉट प्रोसेस इस बारे में यार, बाप रे। You feel these new brands are doing a better job? Yeah, absolutely. एक step आगे लेवल सबके निकल रहे हैं यहाँ पे। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट Chromebooks? Baigan. Hi guys, welcome to Hardly Technical, a podcast where we talk about tech in a non-technical way. And in this episode, I have with me Nikhil and I have Florence with me. So before Florence gives his introduction, I would like to tell you 3 things about Florence. First, he's a really fun person to be around. Secondly, he's the most fashion-forward journalist I have ever seen. And thirdly, he's in a very happy relationship with laptops. Oh, like what thing क्या बोलने वाली है? And I've been doing this thing for like almost a decade now. And that's why I said he's in a very happy relationship with laptops and these ऐसे and ऐसे. gadgets. So in this, first of all, thank you for joining Thank you us. so much for calling me. इस एपिसोड में मेरे को बात करनी थी अबाउट लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स ऑल्सो। किसी को अभी नया अपना कुछ लैपटॉप या फिर टैबलेट लेनी है, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है फर्स्टली कि उनको टैबलेट लेना चाहिए या फिर लैपटॉप लेना चाहिए। सो व्हाट शुड वन बाय? लेट्स स्टार्ट विद दैट। I personally believe कि if you are into content consumption, because these tablets will offer you a lot more of battery life. And also the fact that tablets are much more easier to carry. आपको OLED screens आसानी से मिल जाती है, वहाँ पे आपको Super AMOLED display मिल जाता है, nice quality of speakers are out there, and काफ़ी power efficient processors आपको वहाँ पे मिल जाते हैं. Qualcomm is doing great, MediaTek is of course doing great as well, and it gives you a lot more battery life. तो अगर आप consume कर रहे हैं, you can consume for a lot more duration. तो ये एक point I would like to put forward. And what do you think about Chromebooks? Chromebooks. I'm just stuck. I'm just not gonna say anything at all. मैं चुप हूँ बस. Okay. So I agree with your points, but I feel I'm so sorry, no, it's completely यार मतलब I understand कि content consumption के लिए मतलब I am team laptop. So am I. Because I feel anyways I don't like phones जिसमें इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, because I don't want to मतलब इधर से मैं कुछ टच कर रही हूँ फिर इधर मैं टैप कर रही हूँ. I think it's a lot of work. With laptops I feel it's much easier and content consumption है मतलब that's why I'm team laptop, because it मतलब content consumption के लिए you also get good experience on laptops. And one thing which I don't like about tablets is कि जितने भी apps होते हैं like social media apps होते हैं वो optimized नहीं होते हैं अच्छे से इसके लिए. So that's why I am team laptop in this. What do you think? यार आई गेस कि इट डिपेंड्स यूज बजट ऑल्सो. लाइक सपोज किसी का बजट अगर लाइक 25,000 है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली टैब के लिए जाए तो बेटर है. बट अगर किसी का बजट 50,000 है, लाइक अंडर 30 के जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं ना वो सारे यूजलेस हैं. व्हाट डू यू थिंक? नहीं. Okay, now this is very debatable right now. See, I tell you, अंडर 30,000 रुपीज का जो बजट है एक टाइम पे, आज से लगभग आप कॉल करें 3 to 4 years बैक, कॉल इट 5 years मैटर ऑफ फैक्ट, आज से 4-5 साल पहले तक की बात है, यूज टू गेट मशीन्स जिनके अंदर प्राइसिंग था 30,000 रुपए का, एंड आपको उसमें 4 GB की रैम ही मिलती थी, विच वॉज टेरेबल इवन बैक इन द डे. एंड आज की बात तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज 4 GB की रैम इज लाइक वे बिलो द पॉइंट ऑफ एनीथिंग एट ऑल. सो राइट नाउ अगर आप मार्केट में जाते हैं, इफ यू लुक फॉर लैपटॉप, 30,000 रुपीज का जो बजट है, दैट्स अ वेरी नाइस बजट. आपको आसानी से मशीन्स मिल जाएंगी along the likes of Infinix, along the likes of a few other brands. Zebronics is also there for sure. लेकिन I think जो आपको currently मिल रहा है, that they give you 30,000 रुपए के by the way budget के अंदर, at the price of only 30K, they give you a backlit keyboard, they give you an IPS display, that's also a full HD display, and damn nice battery life, and along with all the i3 13th gen shenanigans, तो आपको E core मिल रहे हैं, P core मिल रहे हैं,
आपको अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन मिल रही है, बिल्ड क्वालिटी मेटल की मिल रही है। तो इवन दो आपको ऐसा लगता है कि 30,000 में, लेकिन मुझे लगता है कि 30,000 में आज की डेट में चीज़ें मिलना काफ़ी अच्छी हो गई हैं। ये अलग बात है कि टैबलेट में आपको ओलेड वगैरह मिल जाएगा, वो यहाँ मुमकिन ही नहीं है मिल पाना, क्योंकि वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। बट एंट्री लेवल लैपटॉप के मार्केट के अंदर दे आर डैम नाइस मशीन्स अवेलेबल आउट देयर, यू कैन श्योरली हैव देम एंड बी हैप्पी विद देम। वो आपको रुलाएंगी नहीं फॉर श्योर। बट एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या जैसे इन्फिनिक्स है, जेब्रॉनिक्स है, ये जो नई ब्रांड्स हैं, इनके रिव्यूज उतने अच्छे अभी नहीं आ रहे हैं। लाइक मैंने पर्सनली इन्फिनिक्स का लैपटॉप यूज़ किया था, तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं अगर आप कंपेयर करो जो मेन स्ट्रीम के ब्रांड्स है उससे, HP, डेल, एसस, इन सब से। मेरा तो एकदम उल्टा थॉट प्रोसेस इस बारे में यार, बाप रे। You feel these new brands are doing a better job? Yeah, absolutely. In this yes. in long budget term. segment or in higher segment also. तो मतलब not being a reviewer, मैं बाहर से बात करता हूँ, ठीक है। Currently I'm talking about the outside of the reviewer circle. मैंने अपनी बहन को खुद के पैसों से खरीद के लैपटॉप दिया है इन्फिनिक्स का यार, and I tell you the laptop is still doing great. And which one was that? It was the first ever Infinix का लैपटॉप. It was the Infinix X1. वो उनका पहला डेब्यू लैपटॉप था। इतना बढ़िया लैपटॉप तो शायद इन्फिनिक्स ने दोबारा लॉन्च ही नहीं करा। वो उनका पहला लैपटॉप था, तो वेरी गुड मशीन। अभी भी लॉन्च करते हैं वो लोग, दे आर नाइस मशीन्स ओनली, बट ऐसा नहीं है कि मशीन्स जो है वो लास्ट लॉन्ग नहीं कर रही हैं। मैटर ऑफ फैक्ट अभी रिसेंटली उसका एक हिंज टूट गया था, जस्ट आई एम गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन राइट नाउ। उसका हिंज टूट गया था। वी वेंट टू द सर्विस सेंटर, इनका कस्टमर केयर का जो सर्विस सेंटर होता है वहाँ पे हम लोग गए थे। इट टुक अस अराउंड 1700 से 1400 रुपीज, एंड उसका जो हिंज टूट गया था उन्होंने रिप्लेस कर दिया विद इन लाइक अ डे और टू, एंड वो मशीन ठीक होके वापस आ गई, बढ़िया काम कर रही है। मतलब रिपेयरेबिलिटी भी इजीली एक्सेसिबल है उस चीज की। ओके, या सो आई थिंक in our team also Arpit uses one laptop Realme का जो है, which one is that? I guess Realme का जो फर्स्ट लैपटॉप था, Realme का फर्स्ट लैपटॉप था। So they marketed it as the MacBook killer, मतलब क्योंकि काफी सिमिलर उन्होंने बिल्ड क्वालिटी बनाने की कोशिश करी है। हाँ, डिजाइन मतलब they tried everything that they could, and it was launched for around 45,000 and now it is available for around 35,000. So price range में like Arpit का जो रिव्यू रहा है उसका कि मतलब it's a really nice laptop, वो पिछले 6 महीने से यूज कर रहा है, बैटरी बैकअप काफी अच्छी है, but now Realme has discontinued that laptop. हाँ, so this issue, I mean, when we talk about HP, Acer, these brands जो कितने टाइम से बना रही हैं, I think they are more reliable when you compare it with the newer brands. The reason behind that, I personally feel, is because कि these brands are newer brands. होता क्या है कि when you are new in the market ना, you have a tendency of being scared. आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सामान को क्रिएट कर देंगे, and if people don't buy it, तो ये बन जाएगा डेड स्टॉक, and a dead stock is just the worst thing for any brand out there. अगर कोई सामान नहीं बिक रहा है तो फिर कंपनी क्या अचार डालेगी क्या उस चीज़ का? तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। They want कि इतनी क्वांटिटी में सामान बनाया जाए जो हाथों हाथ बिक जाए। That is also the reason why you will always notice कि when these things go on sale, ये काफ़ी, इसे इन्फिनिक्स का हो गया, जीरो बुक हो गया, या some smartphones as well, they quickly get sold out क्योंकि क्वांटिटी कम होती है। एंड ऐसा आप तभी नोटिस करेंगे जब उसकी वैल्यू फॉर मनी बहुत हाई होती है। तो कंपनी क्या करती है ना, सो दे आर प्लेइंग इट वेरी टैक्टिकली। दे वांट समथिंग जो कि मासेस को केटर कर दे, बहुत हाई वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करके उसकी क्वांटिटी कम बनाएंगे, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, क्वांटिटी कम बनेगी तो उनकी मार्केट बढ़ेगा, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मार्केट टू द ऑडियंस कि हम बेस्ट हैं। आपको रिमेंबर द टाइम यू हैड पोको F1? Exactly. पोको F1 was वो the absolute killer. god killer स्मार्टफोन यार, मतलब वो उससे अच्छा स्मार्टफोन था ही नहीं। I'm getting goosebumps right now, इतना बढ़िया फोन था वो। In fact, For gamers specifically, I feel. For everybody out there. everything. Like पता है, I guess कि पोको ने अभी तक वैसा फोन लॉन्च भी नहीं करा exactly. F6 थोड़ा बहुत क्लोज है, बट Close था। उतना भी बेटर नहीं है। By the way, we are testing out F6 और उसका रिव्यू जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएगा, so you guys can subscribe right now. If I am visible, then yes. If I'm not, then yes. They'll get you the Okay, review. please continue. Yeah. So पोको F1 का मैंने रिव्यू किया था, आज से नया जब भी वो आया था तब मैंने रिव्यू किया था, and I was very impressed by the fact कि यार उस फोन के अंदर आप 120 FPS पे स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं चला गया था तालाब के पास से पत्थर फेंकने के लिए। 960 या 960 damn, FPS. बताओ आप। Now tell me that. बट अगर जैसे Realme ने अपना ये डिसकंटिन्यू कर दिया लैपटॉप, एंड इफ समबडी हैज और उनको ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है रिपेयर कराने में, एंड व्हेन द कंपनी हैज डिसकंटिन्यूड, तब रिपेयरेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज रिपेयरेबिलिटी इज समथिंग दैट वी डोंट थिंक अबाउट अ लॉट व्हेन वी आर बाइंग अ प्रोडक्ट, बट आई थिंक इट चेंजेस द ओवरऑल एक्सपीरियंस। अगर कुछ खराब हो गया फिर आप बनवा नहीं पा रहे हो उसको। Yes. अगर क्वालिटी के ब्रांड के पास में उसके कंपोनेंट्स नहीं है, then it's gonna be a big issue. But I personally think कि शायद तक वो n number of components तो रखते ही होंगे, ऐसा मैं assume कर रहा हूँ। I'm not at all sure about that. I'm just putting out a word. But I am gonna be very less
aware of that right now. I'm not aware of that. So इससे रिलेटेड एक स्टोरी मेरे पास में है. अच्छा. Like I was working with a YouTuber, तो हम लोग ब्रांड के रिव्यूज करते थे. तो हम लोग ASUS के पास में गए थे और we got to know कि with whom? We'll tell you later. XYZ YouTuber. अच्छा. तो ASUS ने क्या किया है कि उनके जो ROG सीरीज के फोन्स आ रहे थे ना, कुछ फोन वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, कुछ फोन की सर्विस कोई थर्ड पार्टी ब्रांड थी वो प्रोवाइड करा रही थी. अच्छा. तो वो थर्ड पार्टी ब्रांड जो थी वो बंद हो गई थी. इस वजह से अभी इनके कुछ फोन्स थे जो रिपेयर में नहीं आ रहे थे. Oh damn. Exactly. ROG 1 आप रिपेयर करा सकते हो. हाँ. ROG 2 आप रिपेयर नहीं करा सकते हो. 5Z आप रिपेयर करा सकते हो. 6Z के उनके पास कंपोनेंट्स नहीं है. अरे बाप रे. So I think हाँ ये थोड़ा सा issue अगर आप मतलब if you are considering to buy a gadget or a laptop or say a phone also like companies from companies like Asus जो कि phones specifically मतलब majorly नहीं बनाते हैं, तो I think you also have to think about these things. और अगर आप छोटे शहर में रह रहे हो because in Delhi everything can be repaired, मतलब कुछ भी तुम कहीं का कोई भी कुछ कहीं से भी कुछ भी करा सकते हो. तुम अपना नया फोन भी बनवा सकते हो खुद के अपने फ्लोरेंस ना. मैं तो घर पे असेंबल कर दूंगा. I mean you can contact him for that. पर I think अगर आप छोटे शहर में रह रहे हो तो मे बी तब आपको थोड़ा बहुत इशू आए इस चीज़ में. So have you guys used tablets as your primary source, मतलब primary device? MI Pad 1 इंडिया में लॉन्च हुआ था back in the day. Flipkart पे वो लॉन्च हुआ था 13,000 रुपीज़ का. And I used to live in भोपाल. ठीक है, अभी भी होम टाउन वही है. तो मैंने फटाफट से ऑर्डर कर दिया था उसको बिकॉज उस टाइम पे MI Pad 1 से अच्छा कोई मशीन था ही नहीं. These brands were just getting started in India. Brands like Xiaomi and all those. And because इनको मार्केट केटर करना ही था. They wanted the audience to understand कि हमसे बेहतर कोई भी नहीं है. उस टाइम पे जो widely popular brands थे, they were Micromax. Exactly. Micromax was very popular back in the day. And उसके बाद फिर Xiaomi ने enter किया. They entered India with I think 2 devices. It was Redmi 1S and it was Xiaomi Mi 3. दोनों ही स्मार्टफोन्स बहुत ही अमेजिंग थे. Mi 3 के अंदर I think they had Snapdragon 800. तो उन्होंने बहुत अच्छे डिवाइस लॉन्च करे, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे. एंड उसके बाद जब उनके फोन्स थोड़े से पॉपुलर हो गए इंडिया में और जब टेक सैवी लोगों ने, बिकॉज टेक सैवी लोग ऐसे होते हैं कि उनको पड़ता है कि यार अगर हमको कहीं बेस्ट वैल्यू फॉर इट्स लाइक कार पीपल, उनको चाहिए बेस्ट इंजन पॉसिबल. मुझे चाहिए थ्रॉटल, मुझे चाहिए फुल ऑन पावर. मे बी इवन इफ दे डोंट यूज इट, मतलब उतना इतना यूटिलाइज ना करें. हमको एकदम बेस्ट चीज एकदम बेस्ट चाहिए. अगर हम अवेयर हैं इस बारे में कि हमें बेस्ट चीज यहाँ से मिल सकती है. उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की सीन क्या है. आजकल तो हम काफी अवेयर हो गए रिगार्डिंग ऑल द सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन एंड स्टफ, बट इतना उस टाइम पे नहीं था. तो पीपल वेरी मच अबाउट द हार्डवेयर पार्ट ऑफ थिंग्स. तो उस टाइम पे लॉन्च हुआ था एनवीडिया का चिपसेट था, एनवीडिया टेग्रा K1. इट्स हाईली टेक्निकल नाउ. It's okay, I think we won't NVIDIA Tegra K1 के साथ में लॉन्च करा MI ने उनका पहला पैड, that was the MI Pad 1, and I used that tablet. उसमें 2 GB की रैम आती थी, सिर्फ 2 GB की रैम थी उस टाइम पे. We had KitKat in that क्या नाम से tablet, KitKat operating system 4.4 Android. और उसमें फिर हम लोग क्या करते थे, we used to install our और क्या बोलते हैं हम अलग से ROM को क्या बोलते हैं, custom ROMs. I forgot the name about it. Yes. तो उस टाइम में हम कस्टम रोम को फ्लैश करते थे, बूट लोडर को अनलॉक करते थे. एंड उस टाइम पे आई रियलाइज्ड कि फॉर कंज्यूमिंग कंटेंट आई थिंक अ टैबलेट इज अ ग्रेट वे टू गो. इट्स वेरी पोर्टेबल, इट हैज गॉट अ लार्जर स्क्रीन, इट हैज गॉट अ बेटर रेजोल्यूशन, एंड इन कंपैरिजन टू द स्मार्टफोन स्पीकर्स भी यहाँ पे बेटर मिल जाते हैं आपको. तो इसीलिए आई फेल्ट कि यू नो आइदर सिटिंग ऑन माई पीसी जो कि एक जगह पे स्टक है, आई हैव टू गो देयर, पुल माई चेयर बैक, सिट डाउन एंड वॉच कंटेंट ऑन माई हेडफोन्स. आई कैन जस्ट कैरी माई टैबलेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो मैं जब ट्रैवल कर रहा था व्हाइल आई वाज इन द बस और आई वाज इन द ट्रेन, वो टैबलेट डाला बैग के अंदर, आपने बैग डाला पीछे और आप चले गए. क्योंकि मोस्टली यू विल आल्सो नोटिस कि टैबलेट्स के अंदर बैटरी कैपेसिटी अच्छी खासी होती है. 8000 mAh, आई थिंक 10,000 आई थिंक इज द नॉर्म आजकल, राइट? नॉर्मल है आजकल 10,000 आई थिंक इज द वेट. आई डोंट नो, नॉट मच इनटू टैबलेट्स राइट नाउ, बट लाइक 8,000-10,000 mAh की बैटरी आपको टैबलेट्स में मिल जाती है, thus लीडिंग टू बेटर बैटरी लाइफ, thus लीडिंग टू अ लॉट मोर ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंटेंट. और बाकी अगर आप टोरेंट इस्तेमाल करते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. But there are some laptops also जो भी that is which are also very easy to carry for someone who is not just consuming content. Correct, and that's why we talk about laptops. तो अगर आप CapCut इस्तेमाल कर रहे हैं, Photoshop इस्तेमाल कर रहे हैं, Premiere Pro पे जा रहे हैं, अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है, something apart from content creation, and that's it. That is exactly where the tablet will die for you. क्योंकि आपको Excel शीट यूज करनी है. अगर आपको Excel यूज करना है तो आपको Excel के साथ में अलग से कीबोर्ड लेना पड़ेगा टैबलेट के साथ में, और वो अटैच ढंग से नहीं होता.
फिर आपको साथ में अलग रखो, यहाँ यूज करो, फिर माउस यूज करो. That's another way to go. And all the additional accessory will cost you around additional 15-20,000 I Easy. feel. अगर एप्पल पे जा रहे हो तो फिर तो कहानी अलग है पूरी की पूरी. So मतलब वो कॉस्ट आपका एनीवेज बढ़ने ही वाला है उस चीज से. A laptop is getting shipped as a whole package on its own. वहाँ आपको कीबोर्ड मिल रहा है, ट्रैकपैड मिल रहा है, स्क्रीन मिल रही है, सब कुछ is there. एक But पॉइंट again- मेरा और है, लाइक अभी जो पैड 6 लॉन्च हुआ है Xiaomi का 870 के साथ में, ठीक है, वो लाइक सपोज किसी को 30,000 का लेना है, क्लियर कट powerful. पे आता है, ठीक है, तो आई गेस कि टैबलेट्स भी आजकल इतने पावरफुल हो चुके हैं कि आप उन पे वीडियोस वगैरह एडिट कर सकते हो. इनफैक्ट आपको एडिशनल जो ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं ना फोटोशॉप के लिए, वो लेने की नीड भी नहीं है, ओह क्योंकि यू आर गेटिंग पेंसिल. हाँ, ये तो है, ये तो है. ऑल्सो आई थिंक मल्टीपल प्लूरल सॉफ्टवेयर आजकल ऐसे आ गए हैं कि इफ यू आर अवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो एग्जैक्टली फिर यू कैन वर्क योर वे अराउंड. ऐसा जरूरी नहीं है कि नाउ यू हैव टू गो टू फोटोशॉप. बैक इन द डे यू ऑलवेज यूज्ड टू गो टू फोटोशॉप ओनली. आजकल इतना सारा एआई हो गया है कि एआई इज एवरीवेयर एंड इट विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग द रिजल्ट्स दैट यू डिजायर, मे बी इवन बेटर. Let's also talk about with the point that we discussed earlier कि आजकल मतलब content consumption में हमारा ये social media apps भी आ जाते हैं, but why मतलब they are not optimized for tabs. तो उसमें भी तो experience I think काफ़ी ज़्यादा आपका ख़राब हो सकता है if you are just consuming content. यहाँ पे एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया के लिए लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आई गेस वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. True. क्योंकि आप फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग टैबलेट्स पे ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, ज़्यादा बेटर तरीके से, रादर देन ये किसी लैपटॉप पे अगर मैं यूज़ करूँ, मुझे वो माउस से जाके फिर वो लाइक करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, हाँ, फिर वो टिप ऐसे करो, और वो टैबलेट पे हमारे पास है सारी चीज़ें एक्सेसिबल है. बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी बातें हैं, दैट इज द एप्लीकेशन इज बेस्ड फॉर एंड्रॉइड और बेस्ड फॉर iOS. वो एप्लीकेशन बेस्ड है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जबकि ऑन मोस्टली ऑन लैपटॉप्स, इफ यू टॉकिंग अबाउट विंडोज लैपटॉप्स या मैक भी, तो वहाँ पे हमारे पास में मैकिंटोश है या तो हमारे पास में विंडोज है, और वहाँ के लिए ये एप्लीकेशंस बनी ही नहीं है. सही बात. So the other way to go around is BlueStacks या कोई एक आप एडिशनल सॉफ्टवेयर के साथ आप इम्यूलेट कर रहे हो चीजों को, जिससे आप एंड्रॉइड रन कर सको. करेक्ट, इम्यूलेट करने के लिए इम्यूलेशन. So अगर बजट कॉन्स्ट्रेंट नहीं है हमारे पास एंड मजा आ गया. बहुत अमीर है. लाइफ में एक स्टेप आगे लेवल सबके निकल रहे हैं यहाँ पे. सो अगर बजट कॉन्स्टेंट नहीं है हमारे पास, एंड देन व्हाट यू थिंक व्हाट वुड बी बेटर, कि अगर हमें जैसे कि हमारे पास टैब भी होता है, sometimes we want to use a laptop for specific things. अगर हमें कुछ मतलब if we want to work on Google Workspace and all, I think having a additional keyboard is always a better thing. So अगर budget constraint नहीं है, so what do you think better क्या होगा, using a tablet as a laptop or using a laptop as a tablet? Because nowadays we have laptop जिसमें dual screen होती है, and we can also use it as a laptop. So better क्या रहेगा? Like recently we reviewed the Asus ZenBook Duo. 2 screens थे, proper Intel Core Ultra 7 प्रोसेसर मिल रहा है, Ultra 9 मिल रहा है उसके अंदर आपको, 32 GB of RAM मिल रहा है. Every single thing that you can desire of a good machine आपको वहाँ पे सब मिल जाता है, with along with 2 screens. And there are machines out there जो कि आपको properly 360 डिग्री पे turn हो जाती हैं. That's like a 2-in-1 proper. तो वो आपके लिए काफी handy हो जाता है. I don't have any experience with tablets, so I'm not going to tell my opinion or my favorite, but you guys tell me which tablets are your favorite. करंटली मैं बोलूँ, अगर मैं बजट टैबलेट्स की बात करूँ तो मुझे पैड 6 काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, या फिर मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है iPad का जो 10th जनरेशन आ रहा है, जो जिस प्राइस पॉइंट पे वो आ रहा है अराउंड 35-32,000, समटाइम्स 28,000 फ्लिपकार्ट डिस्काउंट. सही बात है, ठीक है, तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से. तो अगेन आई वुड गो बैक टू माय ओन वेरी फर्स्ट लैपटॉप, वेरी फर्स्ट टैबलेट, जो मैंने पहला टैबलेट लिया था. आई थिंक वही मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज वो आज के डेट में यूजेबल नहीं है, बट जो उसके साथ मुझे नॉस्टैल्जिया मिलता है उसकी बात ही अलग है. आज तक वो टूटा नहीं है, चल रहा है, 2 GB की रैम में बड़ा घस घस के चलता है, बट लाइक आई नो कि इट्स अ डैम नाइस मशीन. What do you think about gaming on tablets? मेरे हिसाब से क्या है कि अगर बजट का इशू नहीं है तो उसको लैपटॉप पे जाना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप पे ज़्यादा बेटर गेमिंग ऑप्शंस अवेलेबल है. ट्रू, दुनिया जहान की गेम्स बनते हैं हमारे पास में. ऑल्सो जो गेम्स प्ले स्टेशन के लिए बनते हैं, लाइक अभी आपने स्पाइडरमैन देखा, गॉड ऑफ वॉर देखा, ये जितने भी एक्सक्लूसिव गेम्स थे, मैटर ऑफ फैक्ट इवन गेम्स लाइक लास्ट ऑफ अस, वो तक जो गेम पहले बोले जाते थे कि दीज आर एब्सोल्युटली सोनी एक्सक्लूसिव, वो सारे गेम्स अब पोर्ट होके आ रहे हैं विंडोज पे, दे कमिंग ऑन स्टीम. अभी हमने एलन वेक देखा, एलन वेक केम टू पीसी, आपका लास्ट ऑफ अस केम टू पीसी, स्पाइडरमैन केम टू पीसी, फॉरबिडन होराइजन वेस्ट केम टू पीसी. जो भी पॉपुलर टाइटल्स थे प्ले स्टेशन के, जो कि सिर्फ गेमिंग कंसोल पे ही आया करते थे, वो सब आ रहा है विंडोज पे. टैबलेट पे क्या,
PUBG. Tablets it's also very difficult to play. मतलब how would you play? We in fact tried iPad Pro 13-inch वाला Asphalt 9 करके जो गेम था वाह, क्या बात है, very professional game. तो मैं उसमें ट्राई कर रही थी, but the screen is so huge. When you just have the screen, it is very difficult to play also. भाई please get a good laptop with some good heat dissipation and आप games खेलें laptop पे, please और tablet अगर वगैरह मत light लें. gaming Please. करनी है, then तो भी आप लैपटॉप ही लीजिए. थैंक यू. any budget, मतलब what budget they should consider to get a good laptop and a good tablet. I tell you, currently RTX 4050 is the way to go. अगर आपके पास बजट है अराउंड 65,000 रुपीज के आसपास का, 65 से लेके 70 के प्राइस रेंज के अंदर आपको RTX 4050 वाले मशीन्स मिलना शुरू हो जाते हैं. एंड दीज मशीन्स विल गेट यू वेरी गुड परफॉर्मेंस बिकॉज इसके अंदर DLSS मिल जाता है आपको लेटेस्ट जनरेशन. आई थिंक DLSS 3.5. तो आपको विद द हेल्प ऑफ AI, जो कि RTX 3050 वगैरह में 3000 सीरीज में नहीं मिलता है, वो आपको 4000 के अंदर मिल जाता है. आई नॉट गेटिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेक्निकल, लेकिन अगर आप लेटेस्ट जनरेशन के NVIDIA ग्राफिक कार्ड्स पे जाते हैं तो आपको वहां पे ऐसी गेमिंग मिलेगी जो कि आपको लास्ट जनरेशन में नहीं मिलती थी. सो देयर इज अ गेम कॉल्ड एज Ghost of Tsushima. आपको Ghost of Tsushima के अंदर RTX 3050 पे, जिसका प्राइस पड़ता है लगभग 60,000 रुपए के आसपास इन द लैपटॉप मार्केट, तो 60,000 में 3050 के लैपटॉप आपको मिल जाते हैं इजीली मार्केट में. वहां पे आपको 20 FPS मिल रहे हैं. 20 FPS का मतलब है अटक के कैरेक्टर चल रहा है आपका. लेकिन वहीं अगर आप 4050 10,000 अगर आप बढ़ा देते हैं आपके प्राइस ब्रैकेट के अंदर, तो यू विल गेट अ 4050. एंड 4050 में DLSS के इस्तेमाल से आपका जो फ्रेम रेट्स है, जो 20 मिल रहा था पहले आपको, यू विल रीच इन द रेंज ऑफ अराउंड 48 से 50 FPS. डबल हो जाता है वो, विदाउट एनी हिकअप्स डबल हो जाता है वो. तो अगर आपको गेमिंग में ही जाना है एंड अगर आप पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द मिनिमल बजट दैट यू शुड एम फॉर, आई वुड से 65 से 70,000 रुपए आप लेके चलें. 65-70 के बीच में अगर आप लेके चलते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया जेन्युइनली इंप्रेसिव गेमिंग देखने को मिल जाएगी. When we are talking about tablets, then there are multiple brands making tablets. एक तो OnePlus. OnePlus है, Xiaomi है, Realme बनाता है? Samsung है, Yes, Samsung. and then we have Apple. So अगर budget constraint नहीं है किसी के पास and they just want value for money, what do you think one should go with, iPads or tablets from other brands जो कि Android पे based हो? दो चीज़ें यहाँ पे. पहली चीज़ ये कि अगर मैं अंधे पैसे की बात करूँ, बहुत पैसा है, ठीक है, तो डेफिनेटली iPad. बट अगर एक वर्ड होता है ना वैल्यू फॉर मनी, तो आई गेस कि Samsung S9 जो आ रहा है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है. मैं तो भाई एप्पल इतना यूज करता नहीं हूँ. I'm happy with my Android stuff. I would go for Android. And I think it is more like a preference kind of thing because if Oh, you yeah, are in Apple exactly. ecosystem, Yes. वही. then it will become much more easier for you to blend in and Correct. manage all your devices with some other device. मतलब काफी चीजें आसान हो जाती है. I personally feel कि Apple का बहुत अच्छा होता है. Definitely, yes. मतलब the overall experience अगर आपको बहुत ज़्यादा I see it that way. फिर भी अगर आपको कुछ डाउनलोड करना हो तो आप एप्पल के अंदर चीजों को डाउनलोड को पॉज नहीं कर सकते. या आई मीन कुछ चीज़ें हैं बट उसको अगर हम ओवरलुक कर दे, बट ओवरऑल अगर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चीज़ों में, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज नहीं करनी हो चीज़ें, अगर आपको Customize दिमाग नहीं नहीं करना लगाना है, है. दिमाग नहीं अगर आपको दिमाग नहीं लगाना लगाना है तो आप है. एप्पल ले लो. हाँ एग्जैक्टली, दिमाग नहीं लगाना है देन गो विद एप्पल. इट विल गिव यू अ गुड एक्सपीरियंस. इट विल नॉट गिव यू हिकअप्स in between कि भाई ये दिक्कत हो गई वो दिक्कत हो गई, and you can rely on that device. I see people using their 5-year-old MacBooks and tablets, मतलब it's working completely fine. But I think अगर किसी और ब्रांड से 5-6 साल पुराना हम कोई भी गैजेट यूज कर रहे सही होंगे बात है. तो थोड़ी दिक्कत आएगी. ट्रू. हाँ, ये चीज़ तो है. लाइक अगर आप iPad Pro जो फर्स्ट जनरेशन आया था, अगर आज की डेट में यूज़ करोगे ना तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो उसको. बट सेम चीज़ इसमें एंड्रॉइड में नहीं है. एंड्रॉइड में अगर आप 5-6 साल पुरानी चीज़ें उठा लोगे ना, तो वो लैग करेगी, वो चलेगा ही नहीं. Yes. सही बात है. And in fact we do have some iPhones जो कि 2009 में लॉन्च हुए. I saw that. Yes. 5S and it is still working completely fine. मैंने उस पे Instagram चला के देख लिया, मैंने YouTube चला के देख लिया है. So I think Apple wins when it comes to these kind of things कि optimization और आप reliable कितना है आपका gadget. तो I think if you are looking for that kind of a device, then invest money and get like you can get going with Apple. और बैटरी बैटरी ऑफ कोर्स, मतलब बैटरी तो अच्छी iPad में यार अच्छी बैटरी मिलती है. iPad की बैटरी अच्छी होती है. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और है. जैसे एप्पल के अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं ना, तो उनके प्राइस रेंज ऑलरेडी इतने हाई रहते हैं ना कि वो अगर हम 5 साल यूज़ कर रहे हैं, अगर हम किसी एंड्रॉइड पे जा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे जो Xiaomi का टैब आ रहा है, वो इनका लेटेस्ट टैब है अभी, ठीक है, 28,000 का पड़ रहा है. अगर एप्पल की आप बात करोगे
तो मिनिमम जो बजट मुझे लेकर के चलना चाहिए टू अफोर्ड लेटेस्ट स्टफ, वो आई गेस 60-70,000 है। सही बात है। ठीक है, उतने में ना मैं अगर 3 टैब भी 2 टैब भी यूज कर रहा हूँ ना, चेंज कर रहा हूँ 2-2 साल पे, तो भी वो सेम पड़ रहा है ना। और वैसे भी जो एंड्रॉइड की तरफ से सामान आ रहा है वो 870 आई थिंक तुम्हें मिल जाता है वहां पे। एग्जैक्टली 870 मिल रहा है, फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस है। प्लस उसमें जो पेंसिल मिल रही है वो साथ में मिल रही है मुझे। अब बताओ, बंडल्ड है वो, बंडल्ड है। You have एग्जैक्टली, to pay just 12,000 extra Wow. for an Apple Amazing. Pencil. बहुत जस्ट बढ़िया। हाफ ऑफ द Xiaomi। Oh my. अच्छा, when we are talking about कि मतलब 2 साल में आप मल्टीपल टैबलेट्स बाय कर पाओगे दूसरे ब्रांड से, डू यू थिंक रीसेल वैल्यू में भी मतलब डिफरेंस रहता है कि इफ आई एम बाइंग एन एप्पल प्रोडक्ट मुझे बेटर रीसेल वैल्यू मिलेगी इफ आई सेल इट, एंड इफ डू यू थिंक सो? बिकॉज आई थिंक यू आर अ प्रो। निखिल का आई डोंट थिंक सो, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि 2 साल में ना एप्पल अपने फोन के प्राइसेस इतने रिड्यूस कर देता है, खुद से ही 50,000 रुपए की चीज है अभी है 35,000 में मिल रही है, तो मार्केट में मुझे जो उसकी वैल्यू मिल रही है वो 17 ही मिल रही है। ठीक है, तो आई गेस की रीसेल वैल्यू एप्पल की तब अच्छी होती थी जब उनका जो प्राइस था वो इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता था। फॉर एग्जांपल अभी जो आईफोन 14 है वो इजीली अवेलेबल है 55K में, और लोगों ने उसको 80,000 का बाई किया था। आईफोन 14 प्लस 14 प्लस एग्जैक्टली। तो 55K में न्यू अवेलेबल है, तो आई गेस कि जिसको सेकंड हैंड मार्केट में सेल करने भी जाएगा ना तो 35K मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स, अगर वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी है तो। आई थिंक पीपल माइट हैव गॉट क्लैरिटी कि अगर उनको लैपटॉप या फिर टैबलेट के बीच में कन्फ्यूजन है तो उनको किसके साथ जाना चाहिए या फिर क्या बाय करना चाहिए। बट वी ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट विंडोज़ वर्सेस मैक, क्योंकि जब हम लैपटॉप की बात करते हैं तो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि उनको किसके साथ जाना चाहिए, बिकॉज अगर बजट कॉन्स्टेंट नहीं है या फिर उनको 80-90,000 के अराउंड कोई लैपटॉप चाहिए, देन देयर इज़ अ बिग कन्फ्यूजन कि किसके साथ जाना चाहिए। बट दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट पार्ट, and till then you can subscribe to Hardwire and do share this video with your friends जो कि confuse हैं laptop versus tablet के बीच में, and you can always follow Hardwire on Instagram, you can follow us on Instagram and on Twitter as well, and you will see the next part which is Windows versus Mac 1 week after this video. Bye. sayonara.